Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model Senior Secondary School 3B1 Mohali. Dear students, we are doing our fourth chapter, that is Animal Kingdom. And we all know that Kingdom Animalia is divided into 11 phylums. We have discussed the first 10 phylums, that is Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Nemathyhelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Hemichordata. And today we will start the last and the most advanced phylum, that is phylum Chordata. So students, let's start the study of the most advanced phylum of kingdom Animalia, that is phylum Chordata. Now students, these phylum Chordata, it is having four specific characteristics, or we can say that phylum Chordata, that is having four basic features. Now what are these four basic features? First point, dorsal hollow nerve cord, dorsal hollow nerve cord. Second, notochord, which is a long supporting rod that runs throughout the body and it is present below the nerve cord. Third point is the post-anal tail. And fourth, pharyngeal pouches or gill slits. So these are the four basic features of phylum Chordata. So let's study all of these features one by one. First point, नोटोकॉर्ड. नाउ स्टूडेंट, नोटोकॉर्ड जो है वो एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है. दिस इज शोन दी नोटोकॉर्ड. सो इट इज़ अ सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट बिलो दी नर्व कॉर्ड. And this notochord, it remains throughout the life of most invertebrate chordates. Invertebrate chordates means in lower chordates. Lower chordates में तो notochord throughout life persist करती है, but higher chordates में ये notochord replace हो जाती है by vertebral column. Clear students? So the presence of notochord is the basic feature of the phylum Chordata. Next है स्टूडेंट डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और वी कैन से डॉर्सल हॉलो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो फ्लूइड फिल्ड ट्यूब है ऑफ नर्व टिश्यू that runs the length of the animal, this one that runs the length of the animal dorsal to the notochord. So it is present above the notochord and it is filled with a fluid, and it is present in chordates throughout the embryonic and adult life. So it is present in all the chordates throughout the embryonic as well as in the adult life. So second basic feature है dorsal hollow nerve cord which is present above the notochord. Third point, pharyngeal gill slits. Pharyngeal gill slits एक्चुअली हैं क्या स्टूडेंट? दीज आर दी पेयर्स ऑफ ओपनिंग. ये बॉडी के दोनों साइड्स पे, लेफ्ट एंड राइट साइड, दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स. सो पेयर्स ऑफ ओपनिंग थ्रू दी फैरिंग्स. और जो लोअर कॉर्डेट्स हैं स्टूडेंट्स, जो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं, लोअर कॉर्डेट्स, वो फेरेंजियल गिल स्लिट्स को यूज़ कर रहे हैं टू फिल्टर फूड. जबकि हायर कॉर्डेट्स में, फॉर एग्जांपल फिशेस में, इन गिल स्लिट्स को यूज़ किया जाता है फॉर ब्रीदिंग, because these gill slits they develop into gills. So in the higher chordates these gill slits they are used for breathing. And रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में, जो कि अगेन मोस्ट हायर जो कॉर्डेट्स हैं, उनमें गिल स्लिट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन वेस्टिजियल फॉर्म्स. वेस्टिजियल फॉर्म्स मीन्स दे आर नॉट परफॉर्मिंग एनी फंक्शन एंड दे आर प्रेजेंट ओनली इन द एम्ब्रियोनल स्टेज. मीन्स एडल्ट स्टेज में ये डिसअपियर कर जाती हैं और एम्ब्रियोनल स्टेज में ये प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ वेस्टिग्स. Last character, that is the post anal tail.
द नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड द मायोटोम्स, ये मायोटोम्स भी हैं स्टूडेंट, ये भी फीचर है, बट दिस इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉर्डेटा. सो मायोटोम्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट. मायोटोम्स एक्चुअली ब्लॉक्स ऑफ मसल्स हैं विच आर सराउंडिंग द नोटोकॉर्ड एंड द नर्व कॉर्ड, और ये वी शेप की होती हैं. वी कैन सी इन द फिगर ऑल्सो दे आर वी शेप. सो लास्ट जो फीचर है कॉर्डेटा का, दैट इज़ द पोस्ट इनल टेल. नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और मायोटोम्स ये एक्सटेंड कर रही हैं अप टू द टेल रीजन, एंड दे आर फाउंड एट सम टाइम ड्यूरिंग द कॉर्डेट्स डेवलपमेंट. कुछ टाइम के लिए टेल नज़र आती है. कई केसेस में हम देखेंगे कि एडल्ट्स में जो टेल है दैट विल डिसअपियर. सो कई केसेस में टेल परसिस्ट कर रही है, कई केसेस में जो टेल है दैट इज डिसअपियरिंग. सो स्टूडेंट, दिस इज द 4 बेसिक फीचर्स ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा. नाउ सो वी हैव डन नॉन कॉर्डेट्स ऑल्सो. नॉन कॉर्डेट्स में हमने जो है 10 फाइलम्स की हैं. हेमी कॉर्डेटा को एक्चुअली एक लिंक माना जाता है बिटवीन द नॉन कॉर्डेट्स एंड द कॉर्डेट्स. सो हमने नॉन कॉर्डेट्स में पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा किया. सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? क्या डिफरेंसेस हैं? फर्स्ट पॉइंट, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. नॉन कॉर्डेट्स में हमने कहीं नहीं स्टडी किया दैट दे हैव नोटोकॉर्ड. सो उनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है. कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो नर्व कॉर्ड है, वो डॉर्सल साइड पे है, अपर साइड है ऑफ द बॉडी, दैट इज़ टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड. वो हॉलो है, अंदर से खाली है और सिंगल है. जबकि नॉन कॉर्डेट्स में जब हमने नर्व कॉर्ड पढ़ी हैं तो तुमने अगर ध्यान दिया हो तो वो जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल होती है, टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड है, लोअर साइड है. वो सॉलिड है, हॉलो नहीं है. इट इज़ सॉलिड, रॉड लाइक, एंड इट इज़ डबल. So this is the second difference between chordates and non-chordates. Third point, pharynx is perforated by gill slits. Here in non-chordates, gill slits they are absent. Then in chordates, heart is ventral. एंड इन नॉन कॉर्डेट्स अगर हार्ट प्रेजेंट था, जैसे हमने मोलस्का में किया, देयर द हार्ट वॉज प्रेजेंट, सो हार्ट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द डॉर्सल साइड. पोस्ट एनल पार्ट दैट इज टेल इज प्रेजेंट, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हमने कहीं भी टेल के बारे में नहीं पढ़ा. सो देयर द पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट. सो दीज आर द डिफरेंसेस, ब्रॉड डिफरेंसेस बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. नाउ नेक्स्ट, now the phylum Chordata, this is divided into 3 subphylums. It is divided into 3 subphylums. And what are these 3 subphylums? Urochordata, Cephalochordata, and third one is Vertebrata. क्लियर स्टूडेंट? सो फाइलम कॉर्डेटा जो है वो डिवाइडेड है 3 सब फाइलम्स में. यूरोकॉर्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा, एंड द थर्ड इज द वर्टिब्रेटा. जो स्टूडेंट ये यूरोकॉर्डेट्स हैं और सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, इनको हम लोअर कॉर्डेट्स कहते हैं, और इन्हें कट्ठा प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है. दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स. क्लियर? So these are the lower chordates, urochordates and cephalochordates. ये एक्सक्लूसिवली मेरीन है. दे आर फाउंड इन सी वाटर. सो क्लियर हो गया स्टूडेंट? फाइलम कॉर्डेटा दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम्स, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को कलेक्टिवली हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं. दीज आर दी लोअर कॉर्डेट्स. नाउ यूरोकॉर्डेट्स में स्टूडेंट क्या खास बात है कि यूरोकॉर्डेट में ये याद रखना, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वा एंड दैट टू इन द टेल रीजन. टेल में प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड ओनली इन द लार्वल स्टेज. एडल्ट में इट डिसअपियर्स. जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड है दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द हेड टू टेल एंड वो थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करती है. क्लियर हो गया स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरो का मतलब क्या होता है? यूरो मीन्स टेल, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इन द टेल एरिया. सिफेलो का मतलब है हेड, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड. सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल
और थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करेगी, ऐसा नहीं कि वो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है एंड इट इज़ गेटिंग डिसअपियर्ड इन द एडल्ट फॉर्म. नो, इट विल परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ. क्लियर स्टूडेंट्स? यूरोकॉर्डेटा में एग्जाम्पल है एसिडिया का और डोलियोलम, और सिफेलोकॉर्डेटा में एग्जाम्पल्स आता है लेंसलेट्स का. फॉर एग्जाम्पल ब्रेंकियोस्टोमा, ऑल्सो नोन एज एम्फियोक्सिस. नाउ let's start the first subphylum of the phylum Chordata, that is the Urochordata. Urochordata जो हैं, they are also known as tunicates. Now why they are called as tunicates? Because इनकी जो body है ना student, that is covered by a leathery material, एक leather like कवरिंग से ये कवर्ड है एंड दिस इज़ नोन एज ट्यूनिक. इसको हम ट्यूनिक कहते हैं. एंड दिस ट्यूनिक इज़ मेड अप ऑफ अ सेलुलोज लाइक मटीरियल विच इज़ नोन एज ट्यूनिसिन. सो इसीलिए बिकॉज देयर बॉडी दैट इज़ कवर्ड बाई अ लेदरी टेस्ट विच इज़ नोन एज ट्यूनिक, देयरफॉर हम यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं. 2000 टोटल स्पीशीज़ हैं ट्यूनिकेट्स की एंड नियरली 100 पेलाजिक स्पीशीज़ हैं. पेलाजिक मीन्स ये ओपन सीज में अकर करते हैं. एक्सक्लूसिवली वी नो कि हमने पढ़ा कि जो लोअर कॉर्डेट्स हैं दे आर फाउंड इन मेरीन वाटर, दे आर ओनली फाउंड इन सीज. एंड यूरोकॉर्डेट्स दे आर फाउंड इन ऑल सीज एट ऑल डेप्थ्स. सॉलिटरी हैं मीन्स ये अकेले हैं पाए जाते हैं, और या ये ग्रुप्स में भी अकर करते हैं. सिंगली भी अकर कर रहे हैं और दे ऑल्सो अकर इन ग्रुप्स. सिलोम इनमें एब्सेंट है. इंस्टेड इनमें एक एट्रियल कैविटी प्रेजेंट होती है. ये स्टूडेंट जो दिखाई गई है, दिस इज़ द एट्रियल कैविटी. सो सिलोम एब्सेंट है, एट्रियल कैविटी प्रेजेंट है. और ये एट्रियल कैविटी स्टूडेंट देखो बाहर ओपन कैसे हो रही है, थ्रू एट्रियल एपर्चर. और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय बडिंग होता है. और इसमें एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट्स यूरोकॉर्डेट्स में एसिडिया, जिसको हर्डमानिया भी कहते हैं. हर्डमानिया. नाउ हर्डमानिया का स्टूडेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट है. retrogressive metamorphosis. अब metamorphosis, we all know metamorphosis means the changes which are taking place in the larva when it is converting itself into adult. Now retrogressive metamorphosis का मतलब है कि जब एक more chordate like larva it is changing into less chordate like adult. जब एक एडवांस्ड हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स लार्वा एक सिंपल एडल्ट में चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो रिग्रेस कर रहा है. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, उसमें रेग्रेसिव चेंजेस आ रहे हैं. क्लियर? सो जो ट्यूनिकेट्स हैं या हार्डमानिया है, हार्डमानिया का जो लार्वा होता है स्टूडेंट्स, उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, उसमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है. जबकि एडल्ट्स के केसेस में स्टूडेंट जैसे हम देख रहे हैं कि नोटोकॉर्ड जो है वो डीजनरेट कर जाती है और जो नर्व कॉर्ड है वो भी रिप्लेस्ड हो जाती है बाय सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन. गेल्सलेट्स जो हैं वो परसिस्ट करते हैं. टेल भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेल भी डिसअपियर कर गई है. सो हमने पढ़ा कि कॉर्डेट्स के मेन फीचर्स क्या हैं. नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, फेरेंजियल गिल्सलेट्स एंड टेल है. बट एडल्ट में हमने देखा कि नोटोकॉर्ड भी डिसअपियर हो गई, नर्व कॉर्ड भी रिप्लेस हो गई बाय गैंग्लियन, टेल इट ऑल्सो डिसअपियर्ड. तो यहाँ पे हमने देखा कि एक मोर जो कॉर्डेट लाइक लार्वा है दैट इज चेंजिंग इनटू लेस कॉर्डेट लाइक एडल्ट. सो दिस इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. और इसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? हार्डमानिया. क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूरोकॉर्डेटा. नेक्स्ट फाइलम है स्टूडेंट, नेक्स्ट सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा. सिफेलोकॉर्डेटा को हम लेंसलेट्स भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज वॉट? लेंसलेट्स. नाउ व्हाई दे आर नोन एज लेंसलेट्स? लेंसलेट्स इसलिए बिकॉज इनकी जो बॉडी है ना वो लेटरली कॉम्प्रेस्ड होती है. लेटरली का मतलब फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड. लेफ्ट और राइट साइड से इनकी बॉडी कॉम्प्रेस्ड है और स्पिंडल लाइक है. स्पिंडल लाइक का मतलब होता है जो कि आगे और पीछे से पॉइंटेड होती है. सो इनकी बॉडी जो है वो लेटरली कॉम्प्रेस्ड है और स्पिंडल शेप्ड है.
सो ब्लेड लाइक शेप हम कह सकते हैं, ब्लेड लाइक फॉर्म है। और इनके क्या फीचर्स हैं स्टूडेंट्स? एम्ब्रियोज डेवलप, इनमें नोटोकॉर्ड है। और हमने पढ़ा भी यूरोकॉर्डेट सिफेलोकॉर्डेटा का क्या इम्पॉर्टेंट है फीचर। सिफेलो का मतलब होता है हेड, कि इनमें जो नोटोकॉर्ड है इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल. It is present from head to tail and it persists throughout life. It will persist throughout life. So they have notochord, they have dorsal hollow nerve cord, they have pharyngeal gill slits, and they have post-anal tail. फिल्टर फीडर्स हैं इनमें स्टूडेंट्स, दे आर फिल्टर फीडर्स बिकॉज इनमें जो माउथ होता है, यहाँ पे माउथ पे छोटे छोटे से जो हैं सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो एंड दीज सीलिया इट ड्रॉ वाटर इनटू द माउथ, और इस तरीके से फिल्टर करके जो है द सीलियाज, द स्मॉल सीलिया, ये एक नेट सा फॉर्म करेंगे. सो फिल्टर होके पानी जो है और फूड जो है दैट विल एंटर इनटू देयर माउथ. And they swim like fishes. Or chevron shape muscles. Chevron shape means V shape muscles that are present on either side of the notochord. तो स्टूडेंट्स सिफेलोकॉर्डेट्स में एग्जाम्पल किसका आता है? ब्रेंकियोस्टोमा का, जिसको हम कॉमनली लेंसलेट्स भी कहते हैं. तो ये स्टूडेंट अगेन एक पिक्चर है लेंसलेट की. तो लेंसलेट में हम देख रहे हैं कि सारे फीचर्स कॉर्डेट्स के प्रेजेंट हैं. इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है फ्रॉम हेड टू टेल, इनमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, इनमें टेल प्रेजेंट है, इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं. और ये देखो इनका माउथ है विथ स्मॉल टेंटिकल्स और सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, एंड देयरफॉर दे आर व्हाट? दे आर फिल्टर फीडर्स. So this was about the two subphylums which are also known as protochordates, और इन्हें हम lower chordates भी consider करते हैं. नेक्स्ट हायर कॉर्डेट्स. हायर कॉर्डेट स्टूडेंट किसको कहा जाता है? वर्टिब्रेटा को, वर्टिब्रेट्स को. ठीक है. So members of the subphylum vertebrata, they possess notochord during the embryonic period. कि एम्ब्रियोनल स्टेज में तो इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बट इन द एडल्ट स्टेज इनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम, एंड दिस वर्टिब्रल कॉलम इज आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी. So we can say that all vertebrates are chordates. In all vertebrates notochord is present, but all chordates they are not vertebrates. Like we have done lower chordates. तो जितने lower chordates हैं वो vertebrates नहीं हैं, because उनमें notochord replace नहीं हो रही by the vertebral column. So ये statement clear हो गया student. All vertebrates are chordates, but all chordates they are not vertebrates. Next. Besides the basic chordate characters, vertebrates में ventral muscular heart है with 2, 3 और 4 chambers. Kidneys present है for excretion and osmoregulation, और paired appendages present हैं which may be fins or limbs. So let's start the classification of vertebrata. ठीक है. हमने किए थे कि फाइलम कॉर्डेटा वो 3 सब फाइलम्स में डिवाइडेड थी. सो दिस वाज दी थर्ड सब फाइलम, दैट इज़ दी सब फाइलम वर्टिब्रेटा. नाउ वर्टिब्रेटा स्टूडेंट 2 डिविजन्स में डिवाइडेड है, ए ग्नाथा एंड ग्नाथा, या ए ग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमेटा. ए ग्नाथा मीन्स विदाउट जॉज, इनमें जॉज एब्सेंट है. ग्नाथा मीन्स इनमें जॉज प्रेजेंट है. और क्या खास बात है स्टूडेंट की जॉज के साथ साथ इनमें एक्सोस्केलेटन जो है दैट इज़ ऑल्सो एब्सेंट. इनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, इनमें एक्सोस्केलेटन भी एब्सेंट है, और इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस. ठीक है. सो पेयर्ड अपेंडेजेस जो हैं दैट इज़ ऑल्सो एब्सेंट इन एग्नाथा. सो एग्नाथा में जॉज एब्सेंट है, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है, पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट है, जबकि ग्नाथा में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, जॉज प्रेजेंट है, एंड पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट है. सो ग्नाथा जो है वो 2 सुपर क्लासेस में डिवाइडेड है.
पाइसिस जिसमें फिन्स हैं एज लोकोमोटरी ऑर्गन्स, और टेट्रापोडा जिसमें लिम्स हैं एज लोकोमोटरी ऑर्गन्स। और पाइसिस में दो क्लासेस हैं, कॉन्ट्रिक्थीस जिनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं, और दूसरी हैं ऑस्ट्रिचथीस विच आर बोनी फिशेस। और एग्नाथा डिवाइडेड है इनटू सिंगल क्लास दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। सो लेट्स स्टडी साइक्लोस्टोमेटा। नाउ साइक्लोस्टोमेटा जो है उसके all members of the cyclostomata, they are ectoparasites, they are totally dependent on host. इनकी जो बॉडी है दैट इज इलोंगेटेड बॉडी है, और 6 to 15 पेयर्स हैं ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। माउथ इनका जो स्टूडेंट दैट इज सकिंग, सर्कुलर माउथ है विदाउट जॉज, क्योंकि हमने ये किसका मेंबर है, दिस इज द मेंबर ऑफ एग्नाथा, सो विदाउट जॉज है, माउथ सर्कुलर है, बॉडी में स्केल्स जो हैं वो एब्सेंट हैं, पेयर्ड फिन्स भी एब्सेंट है। हमने पढ़ा कि पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट है, एक्सोस्केलेटन भी इनमें एब्सेंट होता है, जॉज भी एब्सेंट होते हैं। क्रेनियम और इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, दैट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन्स को, जैसे हमारा नोज एरिया जो है स्टूडेंट, वहाँ पे बोन्स नहीं कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। सर्कुलेशन इनका जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप है, मीन्स ब्लड इज फ्लोइंग इन ब्लड वेसल्स। साइक्लोस्टोम्स मेरीन है, बट ये माइग्रेट करती हैं फॉर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग मीन्स फॉर एग लेइंग टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे विल डाई, एंड देयर लार्वा after metamorphosis it will return back to the oceans. So ocean से ये fresh water में जा रहे हैं, marine से ये fresh water में जाते हैं for egg laying. After egg laying they are dying there, and then their larva that is forming adult, and when the adult is formed it returns back to the oceans. So इनमें examples है student petromyzin और lamprey, और myxin that is the hagfish. सो स्टूडेंट दिस इज़ अबाउट दी साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा में स्टूडेंट ये दिखाई गई हैं हैग फिशेज़ और लैम्प्रेज, और ध्यान से देखो इनका माउथ स्टूडेंट, जो इनका माउथ है दैट इज़ सर्कुलर, इट इज़ सक्टोरियल, एंड जॉज मैंने कहा, अदरवाइज टीथ दे आर प्रेजेंट ऑन जॉज। इनमें जो टीथ है स्टूडेंट दैट इज़ प्रेजेंट ऑन टंग लाइक स्ट्रक्चर, टीथ इज़ प्रेजेंट ऑन टंग. So they are jawless, mouth is circular, suctorial with tongue bearing the teeth. Clear students? So ये बहुत इनका unique feature है कि they are teeth that is present on the tongue like structure, because in them jaws they are absent. Now next student, next start the gnatha. Gnatha जो है उसमें हमने किया कि they are divided into टू ग्रुप्स, वन इज़ पाइसेस और दूसरे थे टेट्रापोडा। पाइसेस में जो अपेंडेजेस हैं दे आर फिन्स, और टेट्रापोडा में जो अपेंडेजेस हैं दे आर दी लिम्स। सो कॉन्ट्रिक्थीस जो हैं वो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, एंड दे आर मेरीन एनिमल्स। स्ट्रीमलाइंड इनकी बॉडी है। स्ट्रीमलाइंड कैसी होती है, आगे से और पीछे से नैरो, बीच से ब्रॉड, ताकि वाटर करंट को रेजिस्ट कर सके। और इनका जो एंडोस्केलेटन है, अंदर जो पार्ट है, हार्ड पार्ट जो है इनका, स्केलेटन जो है वो बोन्स का नहीं बना हुआ, दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। क्लियर? माउथ इनमें वेंट्रल है, दैट इज टूवर्ड्स द लोअर साइड। नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करता है। गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट हैं। गिल स्लिट्स कितने हैं इनमें, इन स्टूडेंट्स 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स दे आर प्रेजेंट, एंड दीज गिल्स दे आर नॉट कवर्ड बाय ऑपरकुलम। फिगर से ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, हम इसकी आगे पिक्चर भी करेंगे। सो 5 to 7 पेयर्स हैं इनमें गिल्स के, एंड दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी कवर, दिस कवर इज़ नोन एज ऑपरकुलम। स्किन इनकी टफ है, और इनमें माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है। टीथ जो हैं वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स हैं, जो कि पीछे की तरफ बैकवर्डली डायरेक्टेड है, नॉट टुवर्ड्स एंटीरियर साइड, दैट इज टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड, पीछे की तरफ।
जॉज दे आर वेरी पावरफुल. मोस्टली ये प्रिडेटर्स हैं स्टूडेंट. इनमें शार्क्स आती हैं. शार्क्स जो हैं दे आर दी प्रिडेटर्स. शार्क्स और रेज हैं. रेज जो हैं वो स्कैवेंजर्स होती हैं, डेड मैटर पे फीड करती हैं. बट कि वेयर एज जो शार्क्स हैं दे आर प्रिडेटर्स. सो दे जॉज दे आर वेरी पावरफुल एंड दे आर प्रिडेटर्स. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर. इनमें स्टूडेंट एयर ब्लैडर एब्सेंट है, इसीलिए इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, अदरवाइज दे विल स्टार्ट सिंकिंग. हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड है विद 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. और इनमें स्टूडेंट 2 एसेसरी चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं, साइनस वेनोसिस एंड कोनस आर्टीरियोसिस. और क्या खास बात है इनकी कि इनके जो आरबीसी हैं दे आर बाई कॉन्वेक्स. ये आरबीसी भी हम आगे देखेंगे कि आरबीसी में भी काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन होगी जब हम आगे वाली क्लासेस पढ़ेंगे. तो फिशेस में सो आरबीसी जो हैं वो बाई कॉन्वेक्स है और न्यूक्लिएटेड है. मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है और शेप कैसी है इनकी, बाई कॉन्वेक्स. सो हार्ट में 2 चैम्बर्स हैं, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, और 2 एसेसरी चैम्बर्स, साइनस वेनोसिस एंड कोनस आर्टीरियोसिस भी प्रेजेंट हैं. आरबीसी कैसे हैं, बाई कॉन्वेक्स हैं, न्यूक्लिएटेड है. जो नर्वस सिस्टम है स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम में इनमें ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिबेलम प्रेजेंट है और 10 पेयर्स हैं cranial nerves के. 10 pairs of cranial nerves they are present. They have electric organs. In fishes को अगर टच किए they give shocks, electric shocks. For example torpedo. And they have poison stings also like trigon. Next they are cold blooded, जिसको हम पोइकिलोथर्मल्स भी कहते हैं. पोइकिलोथर्मल्स मीन्स इनका बॉडी टेम्परेचर जो है दैट वेरी विद द एटमॉस्फेयर, विद द एनवायरनमेंट. इट डजेंट रिमेन कॉन्स्टेंट. ये हमने जब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया था उस टाइम हमने ये स्टडी किया था दैट दे आर पोइकिलोथर्मल्स. सो दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज़ मेल एंड फीमेल दैट इज़ सेपरेट. और मेल्स में जो पेल्विक फिन्स हैं इट बियर क्लास्पस. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है and many of them they are viviparous, that is they are young wormling. तो इसमें एग्जाम्पल है डॉग फिश, ठीक है, सॉ फिश, ग्रेट वाइट शार्क्स एंड स्टिंग रेज. सो शार्क्स एंड रेज जो हैं दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस. और अगर हम शार्क्स और रेज की बॉडी करें तो शार्क्स और जो रेज होती हैं, दिस इज शार्क. शार्क की बॉडी जो है स्टूडेंट वो लेटरली कॉम्प्रेस्ड होती है, मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, दैट इज़ लेटरली कॉम्प्रेस्ड. और जो रेज हैं उनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है. ये लेटरली कॉम्प्रेस्ड है एंड दिस इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. शार्क्स में स्टूडेंट कोई जो एयर ब्लैडर है, स्विम ब्लैडर है, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट. तो दे शुड स्विम कॉन्स्टेंटली, अदरवाइज दे विल स्टार्ट सिंकिंग. नाउ नेक्स्ट है लास्ट, दैट इज़ दी बोनी फिशेस. बोनी फिशेस जो हैं दे आर ऑल्सो नोन एज ऑस्टिच थीस. इट इंक्लूड्स बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर. कार्टिलेजिनस फिशेस ये मेरीन वाटर में ही अक्कर करती हैं, जबकि बोनी फिशेस जो हैं वो मेरीन वाटर के साथ साथ फ्रेश वाटर में भी अक्कर करती हैं. कार्टिलेजिनस फिशेस का जो एंडोस्केलेटन था दैट वाज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. इनमें बना हुआ है बोन्स का. बोथ ऑफ देयर बॉडी दैट इज स्ट्रीमलाइंड. माउथ हमने पढ़ा कार्टिलेजस, हम कंपैरेटिव थोड़ा सा करेंगे स्टूडेंट. माउथ जो था कार्टिलेजिनस फिशेस में दैट वाज वेंट्रल. यहाँ पे माउथ कैसे है, टर्मिनल है. वहाँ पे 5 to 7 पेयर्स थे गिल्स के, यहाँ पे 4 पेयर्स हैं गिल्स के. वहाँ पे गिल्स अनकवर्ड है. हेयर द गिल्स दे आर कवर्ड बाई अ फ्लैप विच इज नोन एज operculum. There the scales they were placoid. Here cycloid and ctenoid scales they are present. Their air bladder was absent. Here air bladder is present, which is providing its buoyancy. Heart is 2 chambered in both cartilaginous as well as bony fishes. Both are cold blooded. Both have 10 pairs of cranial nerves. In both the RBC, that is biconcave,
it is biconvex and nucleated. Sexes सेपरेट हैं, दैट इज़ मेल एंड फीमेल सेपरेट. फर्टिलाइजेशन जो है इसमें एक्सटर्नल है, वेयर एज इन दैट केस द फर्टिलाइजेशन वॉज इंटरनल. ये मोस्टली ओवीपैरस हैं. देवर विवीपैरस, यंग वन लेइंग. ये एग लेइंग है. डेवलपमेंट इनके केस में कैसा है स्टूडेंट? डायरेक्ट है. तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स का, लेब्यूरोहिता, कैटला फिश. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्टिच. थोड़ा सा डायग्राम से हम इनकी डिफरेंसेस जो है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट. देखो इनका माउथ जो है वो वेंट्रल है, टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड. ये क्या होती है? दिस इज़ द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी एंड दिस इज़ द वेंट्रल साइड. सो माउथ वेंट्रल है. यहाँ पे हम देख रहे हैं माउथ कैसा है? टर्मिनल है. इनकी जो टेल फिन है स्टूडेंट, कार्टिलेजिनस फिशेस की जो टेल फिन है वो हेटीरो सर्कल है. हेटीरो सर्कल का मतलब कि उसके जो दो फ्लैप्स हैं वो अनइक्वल हैं, जबकि यहाँ पे जो टेल फिन है वो होमो सर्कल है. उसके दोनों जो यूनिट्स हैं दे आर इक्वल. नेक्स्ट, गिल स्लिट्स देखो यहाँ पे एक्सपोज्ड है. यहाँ पे देखो जो गिल स्लिट्स हैं वो कवर्ड हैं, दिखाई नहीं दे रहे हमें गिल स्लिट्स बिकॉज दे आर कवर्ड बाय द ऑपरकुलम. यहाँ पे स्केल्स कैसे हैं? देवर प्लिकॉइड स्केल्स. यहाँ पे स्केल्स कैसे हैं? दे आर साइक्लॉइड स्केल्स. सो स्टूडेंट डिफरेंस भी हो गया. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस? सो कार्टिलेजिनस फिशेस में जो एंडोस्केलेटन है दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज. यहाँ पे बना हुआ है बोन्स का. यहाँ पे माउथ टर्मिनल है. हेयर द माउथ इज़ वेंट्रल. टेल फिन होमोसर्कल है, टेल फिन हेटीरो सर्कल है. ऑपरकुलम एब्सेंट है जो कि एक फ्लैप है, गिल स्लिट्स को कवर करता है. हेयर इट इज़ एब्सेंट, हेयर इट इज़ प्रेजेंट. यहाँ पे एग्जाम्पल है स्कोलियोडॉन, टॉर्पिडो. हेयर द एग्जाम्पल इज़ लेब्यूरोहिता, कैटला, एनाबास एक्स्ट्रा. So student, this was all about some of the important classes of chordates. Like today we studied about the class Cyclostomata, the class cartilaginous fishes and the class bony fishes. Now in my next lecture I will do the class Amphibia to Mammalia. Till then students, thank you.